السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں عزیز طلباء؟ دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 8 پنچایت، جس کے لکھنے والے منشی پریم چند ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے آپ کتاب کھولیے صفحہ نمبر 69، پیج نمبر 69۔ بچوں، آپ نے مغلیہ شہنشاہ جہانگیر کا نام سنا ہوگا۔ وہ اپنے عدل و انصاف کے لیے کافی شہرت رکھتا ہے۔ اسے اپنی ملکہ نور جہاں سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ وہ حکومت کے معاملے میں بھی اس سے مشورے کیا کرتا تھا۔ لیکن جب ایک مرتبہ نور جہاں نے غصے میں آ کر یہ غریب آدمی کا قتل کر دیا تو جہانگیر نے باوجود اپنی محبت اور چاہت کے نور جہاں کو قید کر دیا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ ٹھیک ہے، چلیے ماخذ، یہ سبق کہاں سے لیا گیا؟ یہ افسانہ منشی پریم چند کے افسانوں میں سے ایک ہے جو دیہاتی معاشرے پر مبنی ہے۔ دیہاتی زندگی کا عکاسی کیا ہے، پورا فریم کیا ہے۔ اس میں انصاف کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ کیسا ہے دیکھیے، سبق سنیے۔ جمن کی بیوہ خالہ کے پاس کچھ تھوڑی سی ملک تھی، مگر کوئی قریبی وارث نہ تھا۔ تھوڑا سا پراپرٹی تھی، کوئی قریبی وارث نہیں تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر، بڑے بڑے خواب دکھا کر خالہ اماں کی وہ ملک اپنے نام کرا لی، رجسٹر کرائی گئی۔ جب تک ہبہ نامہ کی رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ اماں کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھی۔ جب تک جو رجسٹری نہیں کرایا اس وقت خوب خاطرداری کرایا، خوب خدمت کرے سمجھے۔ لیکن رجسٹری پر مہر ہوتے ہی خاطرداریوں پر بھی مہر لگ گئی۔ یہاں رجسٹر پر جو سائن سے ہو گیا، رجسٹری ہو گئی، وہاں پر اس پہ بھی مہر لگ گیا، خاطرداری کم کر دیا، بالکل نہیں کرنا۔ آخر خالہ جان نے جمن شیخ سے کہا کہ تم مجھے روپیہ دے دیا کرو، اگر تم خدمت نہیں کر سکتے تو تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، یعنی لاپرواہی سے جواب دیا۔ خالہ جان نے پنچایت کی دھمکی دی، اگر تم ایسے ہی بولو گے تو میں پھر پنچایت بٹھاؤں گی، پنچایت میں جاؤں گی، کورٹ میں سمجھے۔ جیسے کورٹ میں عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں، چھوٹے گاؤں میں پنچایت بٹھاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے بک میں ہے۔ جمن ہنسا اور کہا ضرور پنچایت کرو، جاؤ پنچایت کرو۔ شام کو پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ وہ صوفے پہ کرسیاں نہیں رہتے، ٹاٹ کا تھیلا بچھاتے ہیں۔ حقہ، پانی کا انتظام تھا۔ بڑھیا نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پنچوں، 5 آدمی رہتے اس پنچ میں، فیصلہ کرنے والے، آج پورے 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ جمن نے تا حیات روٹی دینے کا وعدہ کیا تھا، یعنی مرتے دم تک روزانہ کھانا کھلانے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کسی طرح رو دھو کے کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا کہ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری نہیں کر سکتی، یعنی پولیس اسٹیشن میں اور کورٹ کے اطراف میں نہیں پھر سکتی۔ تم جو راہ نکال دو اسی راہ چلوں، جو راستہ تم بناؤ، جو طریقہ کوئی راستہ بناؤ، اس کے حساب سے میں عمل کر لوں گی۔ بڑھیا کی بات سن کر رام دھن مصر نے جمن سے پوچھا، جمن میاں پنچ کسے بتے ہو؟ پنچ کسے بتے ہو؟ ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے یہ سن کر دلیرانہ انداز میں جواب دیا، خالہ جان جسے چاہیں پنچ بنا دو، جسے چاہیں تیسرا آدمی یا جج بنا دو، سمجھے، پنچ بنا دو، جج بنائیں، مجھے کوئی عذر نہیں۔ ہماری خالہ جس کو بنا دے جج، میں بھی اس کی بات مان دوں گا۔ اس پر گڑیا چلا اٹھی اور جمن سے کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن اپنی بات پر مصر رہا اور غصے سے بولا، اب اس وقت زبان نہ کھلواؤ، جسے چاہے پنچ بنا دو۔ جمن کی خالہ بڑھیا نے سمجھانے کے انداز میں کہا، بیٹا خدا سے ڈرو، میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا، اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہی دشمن ہیں، اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ الگو چودھری ایک پنچ میں سے ایک پنچ تھا،
अलगू चौधरी को तो मानेगा। जुम्मन को ये नाम सुनकर बेइंतहा खुशी हुई। उसने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा, अलगू चौधरी ही सही है मेरे लिए, जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू, मेरा कोई दुश्मन नहीं। जुम्मन की रजामंदी देखकर अलगू चौधरी ने बुढ़िया से कहा कि बूढ़ी अम्मा, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, यानी जिगरी दोस्ती है। बुढ़िया हक पसंद थी। उसने कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं खोता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा का हुक्म, हुक्म खुदाबंद होती है। अलगू चौधरी सरपंच बने। पांचों में बीच में सरपंच बन के आके बैठे। अलगू चौधरी जुम्मन से, जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, हम तुम पुराने दोस्त हैं। जब जरूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की और मुझसे जो बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करता आया हूँ, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो ना हम तुम्हारे। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया। तुम भी कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। एक तरफ बात सुनकर हम फैसला नहीं करते। खाला जान ने तो अपना रोना रोया, अपना जो बात बताना था बताया। अब तुम बताओ अगर कुछ बताना चाहते हो तो। जुम्मन, पंचो, मैं खाला जान को अपनी माँ की जगह समझता हूँ और खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ। औरतों की तो यह आदत ही है, मगर माहवारी रुपया देना मेरे इम्कान से बाहर है। यानी मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, मेरी बीवी और हमारे खाला के बीच में अनबन होती है, जिसकी वजह से रोटी पानी बराबर नहीं देते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो औरतों की आदत है। हाँ, अलबत्ता महीना महीना पैसे दे बोल तो मैं नहीं दे सकता। देख रहे, खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सरांखों पर, यानी जो सरपंच हुक्म दे वो मैं मानूंगा। अलगू चौधरी को आए दिन अदालत से साबका रहता था। कानूनी आदमी थे। ये भी जानते थे कि खेतों से शेख जुम्मन को कितनी आमदनी होती है। जुम्मन पर जरह करने लगे। जरह खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया। जनाह बोलता समझाना, बहस करना। अलगू चौधरी, शेख जुम्मन, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है, यानी अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है। तुम्हें खाला जान के लिए माहवारी गुजारे का बंदोबस्त करना होगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो हिबानामा मंसूख किया जाएगा। जो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें देने के लिए गिफ्ट नीड है उसको खत्म किया जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। वो इस गुमान में था कि मेरा दोस्त है, मेरे तरफ फैसला करेगा। जुम्मन अहबाब से, भाई, इस जमाने में दोस्ती यही है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी जाए। इसी को नैरंगी रोजगार कहते हैं। रामधन मिश्र और दूसरे फैसले से खुश होकर इसी का नाम पंचायत है। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोस्ती की जगह दोस्ती है। मुकद्दम ईमान का सलामत रखना है। ऐसे सत्यावादियों से दुनिया कायम है, वरना कभी की जहन्नम में मिल जाती, दुनिया खत्म होती। अभी दुनिया कायम है तो ऐसे इंसाफ और मुंसिफ लोगों की वजह से। अलगू चौधरी के फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की बुनियादें हिला दी। इनका फैसला जो है इन दोनों की दोस्ती जी हिला दी पूरे देश। जुम्मन के दिल से दोस्ती की गद्दारी का ख्याल दूर न होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन न लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्दी ही मिल गया। अब ये फैसला हो गया, खत्म हो गया इन दोनों की दोस्ती में। और जुम्मन के दिल में जो है ये गद्दारी करा मेरा दोस्त मेरे साथ बोल के, वो भाव, वो जो है ख्याल अभी तक दूर नहीं हुआ था और उसका बदला लेने का टाइम भी बहुत करीब आ गया और जल्दी ही मौका मिला। पिछले साल अलगू मेले से बैल मोल लाए थे, बैल खरीद के लाए थे 2 बैला। पिछाए नस्ल के खूबसूरत बैल थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। पंचायत के 1 महीने बाद बैल मर गया। ये पंचायत हुआ जी जुम्मन के खाले का, 1 महीने के बाद में वो बैल मर गया। जोड़ खराब हो गया। अलगू को शुबा हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवा दिया होगा। गांव में एक समझू सेठ थे। समझू सेठ एक बंदे का नाम। वो एक का गाड़ी हाँकते थे, एक बैल की बंडी, एक बैल को बन के खींचते, एक का गाड़ी हाँकते थे। गांव में गढ़
गड़गी भरते और मंडी ले जाते, यहाँ से माल भर के मंडी को सप्लाई करते, जैसे आजकल ट्रॉलीज वगैरह टाटा एस वगैरह है ना, इस तरीके से वो काम करते थे। मंडी से तेल नमक लाद लाते, वहां से ये भर के लाते, यहाँ से चीजों को ले आके मंडी डालते, गांव में बेचते। अलगू के बैल पर उनकी तबीयत लहराई, मोल भाव किया यानी अच्छा रेट लगाया और अपने दरवाजे पर लाकर बांध दिया। बात कर लिया, इतने दिनों में पैसे दे दूं बोल के रेट वेट बात कर लेके अपने घर को लेके चले गया और घर पे बांध दिया। दाम के लिए 1 महीना वादा हुआ, समझे, क्रेडिट पे लिया था, 1 महीने में मैं पैसे देता हूँ बोल के। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवे करते, 1-1 2-2 जो है राउंड मारने का। नया बैल जबरदस्त है तो 3-3 4-4 5-5 चक्रा मारने लगा। न चारे की फिक्र थी न पानी की, न तो वक्त पे चारा देता था बैल को, न पानी पिलाता था, वो मार मार करता था। बस खेवों से काम लिया यानी चक्रा मारना। महीने भर में बेचारे बैल का कुचुम्बर निकल गया, 1-1 कदम चलना 2 भर था। 1 महीने में दूल्हा पतला हो गया और 1-1 कदम डालना मुश्किल हो गया। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने 2 ना बोझ डाला था। एक दिन ऐसा हुआ, एक आखिरी जो है राउंड में ट्रिप में ज्यादा डबल जो है वजन डाल दिया, बोझ डाल दिया। दिन भर का थका हुआ जानवर पैर मुश्किल से उड़ते थे, उस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे, कोड़े से मारने लगे, चल चल बोल के। बैल जमीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा के फिर ना उठा। रात सेठ जी ने रास्ते ही में बसर की, अब वही रात जो है वही रास्ते में गुजार दिए। अपनी दानिश में तो वो जागते ही रहे, मगर जब फोपटी तो मालूम हुआ कि सारी नकदी और कई कुंटल तेल गायब थे। उन्होंने जागते रहे, समझे, नींद लगी थी आंख, और वहां पे लोग सब जो चोरी कर लिए थे। सुबह उठ के देखे तो क्या है, उनका माल चला गया, उनका पैसा सब खत्म हो गया था। सर पीट लिया। आखिर बाजार खराबी घर पहुंचे, इतने खराबी के उन्होंने घर पहुंच गए। इस वाक़ये को कई माह गुजर गए, कई महीने हो गए। अलगू अपने बैल की कीमत मांगने गए तो समझू सेठ उनसे उलझ पड़े। समझू सेठ पैसे मांगने गए थे अलगू, तो समझू सेठ जो है उनसे उलझ पड़े, लड़ने लगे। समझू सेठ अलगू से झिल्लाकर, यहाँ तो सारे जहन्नम की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए, उन्हें अपने दाम की पड़ी है, अपने पैसे मांगने आ रहे, यहाँ तो हम जो है लुट के पूरा बर्बाद हो गए, जहन्नम में पड़ गए। सिठानी गुस्से से मुर्दा मनहूस बैल दिया था, सिठानी बोल रही है ये, उस पर दाम मांगते हैं। समझू सेठ आंख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। नरा पूरा निगाही समझ लिया है, किसी गड्ढे में मुंह धो आओ तब दाम लेना, पर ऐसी बेवकूफ समझ लिया हमको, जाओ कहीं भी जो है चुल्लू भर पानी लेके मुंह धो लेके आओ, जब मांगना पैसे मेरे से। दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिर लोगों ने सलाह दी, इस तरह आपस में सर फटोल से काम न चलेगा, पंचायत बिठाओ, उसमें जो कुछ तय हो जाए उसे मान लो। अब इनकी तरफ से पंचायत बैठना हुआ, दोनों ने हामी भरी। तीसरे दिन उसी सायेदार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। पहले पंचायत बैठी तो अलगू चौधरी पंचायत फैसला देने वालों में थे, और जुम्मन क्या हुआ, नीचे खड़ा हुआ था उनका फैसला ले लेके खाला के साथ। और अब इस वक्त में अलगू चौधरी जो है वो सेठ के हाथ से जो आपस में उनके झगड़ा हुआ था बैल के बारे में, वो आए हैं। अब पंच कौन बनते हैं देखिए। रामधन मिश्र, अलगू बताओ पंच किसे बनते हो, किसको चुनते हो? अलगू मुनकसिराना अंदाज से यानी आजिजी से, समझू सेठ ही चुन ले, समझू सेठ पे छोड़े तो समझू सेठ जिसको जो है पंच चुन लिया मैं भी मान लूंगा। रामधन मिश्र, समझू सेठ अकड़कर, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम लिख लो, क्योंकि शेख जुम्मन तो दो दुश्मन हो गए, इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी। पिछले जो है पंच में जो है अलगू चौधरी फैसला दिए थे उनके खाला की तरफ, वो दुश्मनी से मुझे फायदा होता बोल के इन्होंने क्या कर दिए, अकड़ कर बोले मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम लिख लो। रामधन मिश्र चौधरी, तुमको तो कोई गदर नहीं। चौधरी कौन? जुम्मन सेठ से पूछा। अलगू चौधरी मायूस अंदाज में, मुझे क्या कदर हो सकता है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, जुम्मन चौधरी को ही बना दो, हर्ज नहीं है। गोदर शाह, समझो भाई सरपंच किसे बनाते हो, समझो अकड़कर शेख जुम्मन को।
रामधन मिस्र अलगू से, अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो कहो। अलगू, किस्मत पर शाकिर होकर, किस्मत में जो होगा उस पर शुक्रिया अदा करेंगे बोल के, नहीं नहीं कोई एतराज नहीं, मुझे कुछ कदर नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, इनकार नहीं है, बना दीजिए। देखिए शेख जुम्मन अपने दिल में क्या बोल रहा, देखिए मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मंदिर पर बैठा हूँ। अभी तक दुश्मनी थी जी, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी, अब वो दिल में सरपंच बनते ही वहां आके बैठे थे, दिल में क्या सोच रहा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मंदिर पर बैठा हूँ, मेरा हुक्म खुदा का हुक्म है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल नहीं है, होना चाहिए। हक और रास्ती यानी सच्चाई से जो भर पीछे हटना, जो भर बोलते थोड़ा बहुत, जो भर पीछे हटना मुझे दुनिया और दीन दोनों में रूसिया करेगा, सूरत काली करेगा, हजार दुश्मनियां होंगे, हजार नफरत होंगी, लेकिन इस वक्त मैं सरपंच की कुर्सी पे बैठा हूं, ये बहुत बड़ा काम है। पंचायत शुरू हुई, फरीकैन ने अपने हालात बयान किए, जरा हुई यानी बातचीत हुई, शहादतें गुजरी, ये गवाहें वगैरह सब हुई। शेख जुम्मन बयानात गौर से सुनने के बाद समझू सेठ और अलगू चौधरी पंचों ने तुम्हारे मामले में गौर किया। समझू सेठ को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है, पूरे बैल की कीमत, जितने पैसों में बैल खरीदे थे वो पूरे पैसे देना वाजिब है। जिस वक्त वो उनके घर आया उसे कोई बीमारी ना थी, अगर कीमत उसी वक्त दी गई होती तो समझू उस वक्त उसे वापस लेने का हरगिज तकाजा न कर सकते। रामधन मिस्र, कीमत के अलावा कुछ तावान भी उनसे लेना चाहिए। समझू ने बैल को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला है। शेख जुम्मन, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। गोदरशा, समझो के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, उन्होंने बहुत नुकसान उठाया और अपने किए की सजा भुगत चुके। जुम्मन, शेख जुम्मन कह रहे हैं इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये अलगू चौधरी की भली मुंशी पर मुनहसिर है, भली मुंशी पर मुनहसिर है। वो चाहे कुछ रियायत करें या चाहे ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी की फूले न समाये। शेख जुम्मन अलगू से गले लगकर, भैया अपनी पंचायत के बाद मैं तुम्हारा जानी दुश्मन था, अब मुझे मालूम हुआ कि इंसाफ की मसनद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन। आज मुझे यकीन आ गया कि पंच का हुक्म खुदा का हुक्म है, जज का हुक्म, पंच बोलते जज का हुक्म, उसकी खिलाफ वर्जी करना मुश्किल है। इस तरीके से इंसाफ की अहमियत समझाई गई। समझ गए? माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए अच्छा सा रीड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।